budget, after you had overheads fixed and variable. In the same way, you have administrative and selling budget दो component, एक fixed, एक variable. The variable selling and admin expenses are 0.50 per unit sold. 0.50 per unit sold. So variable selling and admin expenses are 0.50 per unit sold. तो जितने भी units sold हैं simply multiply by 0.5. Fixed selling and administrative expenses are 70,000 per month. Fixed और भी आसान है. Fixed and selling expenses are 70,000. So that means for the first month it will be 70, for the next month 70, for the next month 70, and then for the whole quarter it will be 210,000. Fixed लिखा है ना सर? What's wrong? Asan, what's wrong? Fixed selling. सही है? Okay. उसके लिए जगह बना रहा हूँ. ये थोड़ा सा हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा ओके स्पेस दे रहा हूँ. ठीक है, क्लियर नाउ? ओके, सो नाउ वेरिएबल इज 0.5 पर यूनिट सोल्ड. यूनिट सोल्ड कहाँ पे गिवन है? यूनिट सोल्ड सेल्स अप्रैल में सेल्स कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 would be equal to 10,000. Okay. For the month of May, unit sold 50,000 multiply by 0.5 25,000. June शामिर, रामेश, आतिफ, आप तीनों की आवाज यहां तक आ रही है? प्लीज कीप क्वाइट. Okay, so now for June, how many units sold? 30,000. Multiply by 0.5? 15. For the whole quarter, how many units sold? 1 lakh. Multiply by 0.5? 50,000. You want to cross check? 15, 25 and 10. 0.5 आपने किधर से निकाला सर? जी. 0.5 आपने किधर से लिया? 0.5 किधर से लिया? अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा था कि दिस इज 0.50 पर यूनिट सोल्ड. सही? हाँ जी, क्लियर? ओके, अब आपके पास फिक्स भी आ गया, आपके पास वेरिएबल भी आ गया. टोटल एडमिन एक्सपेंस कितना हो जाएगा? टोटल एडमिन एक्सपेंस ना, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स प्लस वेरिएबल. सो फिक्स प्लस वेरिएबल वुड बी टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस. सो दिस इज फिक्स्ड, सॉरी दिस इज फिक्स्ड, दिस इज वेरिएबल. सो 70 प्लस 10 80,000. 70 plus 25 95. 70 plus 15 85, and for the whole quarter it will be 260. Is this thing clear? Yes sir. Is this thing clear to all of you? Yes sir. Okay, आगे चलें. Okay, the fixed selling and administrative expenses include 10,000 in cost, primarily depreciation, that are not cash outflows of the current month. इसका क्या मतलब है? The fixed selling and admin expenses include 10,000 in cost, primarily depreciation, that are not cash outflows of the current month. Non cash है. इसका मतलब आपको ये सारे 80,000 पे करने पड़ेंगे. हाँ. So selling and admin expenses paid. पेमेंट कितनी करेंगे? या टू बी पेड कर देते हैं, क्योंकि पेड तो नहीं है, टू बी पेड है. दिस इज फॉर द फ्यूचर, सो यू कैन राइट टू बी पेड. तो कितना पे करेंगे? इंस्टेड ऑफ 80 यू विल पे 70. 10 कम करना है, ज़्यादा नहीं करना. 70,000 इंस्टेड ऑफ 95 85, इंस्टेड ऑफ 85 75. So total will be 230,000. वो डेप्रिसिएशन अमाउंट है जो कि कैश नहीं है, यानी वो आपने पे नहीं करनी. तो अगर पे नहीं करनी तो उसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया. ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं कि पेमेंट कितनी करनी है, कैश पेमेंट कितनी करनी है. जी क्लास क्लियर सो फार? क्लियर? ओके, नाउ दिस इज डन. So let's move on. Oh, sorry.
What are the total cash disbursements for selling and admin expense for the quarter? 230, which is B. सही? Okay. ये भी हो गया. Prepare a cash budget. So this is the last topic of the day, and then we will do the presentations. ठीक है? Hopefully we will finish off quite a few presentations. आज कर सकते. Okay. So now, cash budget. अब कैश बजट में क्या होता है, पहले ये सुन लें. कैश, कितना कैश मेरे पास आया इस पूरे 3 महीनों में, आएगा और कितना कैश मुझसे जाएगा. सो कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, एक चीज. फिर अगर कैश इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, तो फिर देन इट्स अ गुड पोजीशन ना, कैश एक्स्ट्रा है. बट इफ कैश आउटफ्लोज आर मोर देन कैश इनफ्लोज, तो फिर देन देयर इज अ deficiency or shortage of cash. So whenever there is a shortage of cash, what will you do? What will you do? You will borrow. Yes. You will borrow loans. And whenever you take a loan or borrow, there is a interest involved. So this is the whole working of cash budget. You need to find out cash inflow, cash outflow, cash excess or shortage, loan to be taken, interest to be paid. Got the idea? कैश इनफ्लो टोटल कितना? क्या रुके भी स्टार्ट तो करें. वही में एक तो सॉरी अजीम सर वही था. वही तो ये अजीम, ये वो बात है कि डज न पे लिमरे. वेट. Okay, let's start G. So now it says Royal maintains a 16% open line of credit for 75,000. What does this mean? सर आपको लोन के लिए 75,000. Atif, Haya and Shaila, why are you creating disturbance? If you want to talk, you can go outside. Please let us study. Thank you. Maintains a 16% open line of credit for 75,000. हर लोग 75,000 मतलब 16% लोन नहीं 75,000 ले सकता है हर वक्त. 75,000 जब भी ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन है आपके लिए, जब भी आपको पैसों की जरूरत हो 75,000 आप बैंक से जाके ले सकते हैं. तो फिर ये 16% का क्या मतलब? हाँ सही है. 16% of 75,000 मेंटेन करते हैं. नहीं, 16% is the interest. 16% इज द इंटरेस्ट. ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है. अगर अब जब भी आपने 75,000 में से कुछ भी अमाउंट लोन लिया, उसके ऊपर आपको कितने पैसे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे? 16%. क्लियर? मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 30,000. अब ये वो चीज है, मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 30,000. इसका क्या मतलब हुआ? 30,000 हमारे पास होना 30,000 हमारे पास हर महीने के आखिर में होना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं इन अदर वर्ड्स? चाहिए. क्लोजिंग बैलेंस. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपके पास हर वक्त 30,000 होना चाहिए. आगे चलें. बोरोज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड रीपेज लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. अब ये नहीं कि आप इंतजार में होंगे कि किस दिन पैसे कम हो जाएं. आप बिल्कुल महीने के पहले दिन लोन ले लेंगे जब भी जरूरत होगी. यहाँ पे हम देख लेंगे ना किस महीने में जरूरत है, पहले से पता चल जाएगा ना. ठीक है, तो मैं पहले से यहाँ पे लिख दूंगा कि लोन ले लें इस महीने में, तो उस महीने में आप पहले से लोन ले लेंगे. तो आप जब लोन लेंगे तो इट विल ऑलवेज बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. और जब भी लोन रीपे करेंगे, ये नहीं है कि जू थोड़े से पैसे आ गए मंथ के दरमियान में आप रीपे कर दें. नहीं, आप मंथ के एंड तक इंतजार करेंगे. मंथ के एंड में अगर आपके पास 30,000 से ज्यादा पैसे हुए, देखें 30,000 कम से कम होने चाहिए, 30,000 से ज्यादा पैसे हुए और आप लोन अमाउंट को वापस कर सकते हुए और आप इंटरेस्ट के अमाउंट को वापस कर सकते हुए, तो आप अपने लोन को वापस कर देंगे और इंटरेस्ट भी पे कर देंगे. क्लियर हो गया? पेज अ कैश डिविडेंड ऑफ 49,000 इन अप्रैल. अप्रैल के महीने में आपने डिविडेंड पे किया है. परचेजेस ऑफ 143,700 ऑफ इक्विपमेंट इन मई and 48,300 in June. Both purchases paid in cash. इसके अलावा आपने मई और जून में कुछ इक्विपमेंट खरीदा, और ये नहीं है जिस तरह पहले हमने कहा था कि आधे पैसे अभी दो, आधे पैसे अगले महीने दो. सारे के सारे पैसे कैश पेमेंट कर दी. ये भी क्लियर? हैज एन अप्रैल 1st कैश बैलेंस ऑफ 40,000. इसका क्या मतलब हुआ? ओपनिंग बैलेंस कब, किस दिन? अप्रैल का. तो जो अप्रैल का 1st का ओपनिंग बैलेंस होगा ये पहले से पड़ा हुआ है
इसके साथ और पैसे जमा होंगे। पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? सेल्स से। आपने सेल्स कितनी की अप्रैल के महीने में? 20,000 क्या? वो तो यूनिट्स है। तो फिर $2 लाख। ये 2 लाख आपको मिल गए थे? नहीं सर, 1,70,000 सेल्स कलेक्शन। सेल्स कलेक्शन, ये अमाउंट देखना है। सेल्स का अमाउंट नहीं देखना, सेल्स कलेक्शन का अमाउंट देखना है कि कितने पैसे आए। ओके, यहां पे मेरे पास इतना स्पेस है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। सो एंड दिस इज ऑल द व्हाइट बोर्ड आई एम लेफ्ट विद। उससे ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, चेयर रख के कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। सो इसके अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1st April इज हाउ मच? Is 30,000. अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ने आपको बताया है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है? 49,000. नहीं सर, 40,000। 40,000। मेरे पास पहले से कुछ पैसे हैं, बाकी पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? सेल्स से। जो भी सेल्स किए हैं, कुछ ना कुछ पैसे मुझे मिले, वो मेरे पास आ गए। वो कितने हैं? 170,000। 170 ये हैं, 40 पहले से हैं, टोटल कितने हो गए? 210। मैंने कुछ पैसे दिए भी हैं लोगों को। यस सर, बहुत ही। कहाँ पर? 49,000 डिविडेंड रेट। नहीं, वो तो 49,000 वाला इक्विपमेंट परचेज भी किया है सर। 49,000 सर, ये 49,000 पे किया हुआ है कैश डिविडेंड। नहीं, वेज तो पेबल में है, वेज भी पेबल सर, ये डिविडेंड जो पे किया हुआ है सर। सर आप इस क्वेश्चन के रिलेटेड बात कर रहे थे। सारा क्वेश्चन एक ही है, ये देखिए ऊपर से नीचे तक। पेमेंट कितनी? पेमेंट डायरेक्ट मटेरियल 130,000 और 130,000 किधर लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? सर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट किधर है? सर 40,000। ये दिस इज पेमेंट, दिस इज कमिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू ये है। रेवेन्यू 200,000 है। ये क्या है? कैश। कैश व्हाट? कलेक्शन। कलेक्शन। कैश कलेक्शन ये हो गई, एक पेमेंट ये हो गई। और कौन सी पेमेंट है? सर नहीं, सर रॉ मटेरियल परचेज। सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर परचेज। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 76,000। कैश पेमेंट हो गया? कैश पेमेंट सर ये रॉ मटेरियल परचेज परचेज सर, ये जो नहीं किया सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर ये 28,000 सर रॉ मटेरियल परचेज के नीचे जो है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिए। जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर करते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के पैसे आपने दिए थे? कितने दिए थे? उसके बाद अगली चीज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को आपने पैसे दिए? नहीं सर। क्यों? यस सर दिए, वो तो पेबल में है। पेबल में आएगा, तो आप कब पे करेंगे? मंथ एंड में पे करेंगे सर। 15,000 इसको भी पे कर देंगे। किधर है? डायरेक्ट लेबर वेजेस ये वाला P2, दिस P1। और सर ऊपर भी 28,000 इसके ऊपर रॉ मटेरियल को परचेज किया ऊपर। एमओएच पेमेंट सर रॉ मटेरियल परचेज किया ऊपर। ओके, फ़हीम कह रहा है ये भी है। फ़हीम गौर से देखें, 28 + 12 = 40। ये तो आ गया। सर ये एमओएच पेमेंट जो एमओएच क्या आएगी सर टोटल पेमेंट? सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 76। ये किसने लिखा है? ये आपने लिखा है। ये मैंने नहीं लिखा। P3 3 पेमेंट्स। दैट्स इट, दैट्स इट, या डिविडेंड दैट्स इट। 49,000 डिविडेंड सर प्लस सेलिंग एंड एडमिन। उसके पैसे नहीं दिए थे क्या? ये सर प्लीज नीचे लिखो। किधर है? क्या किसके सामने है? 70,000
सर ये तावान हो गया। अभी पता चल जाएगा। तावान हो गया तो क्या मसला है, कर्ज ले ले, कर्ज ले लेते हैं। कर्जदार है चाहो चले। ओके जी, ओके क्लास, पे अटेंशन नाउ। सो नाउ वी नीड टू सी कितने पैसे मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, कितने पैसे मेरे पास आए, कितने पैसे मैंने देने हैं। क्या इसके अलावा अप्रैल में कोई और पेमेंट करनी है मैंने? कैश डिविडेंड भी करना है, ठीक। डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो ये जो भी कंपनी है, ठीक है, ये अपने शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को कुछ पैसे दिए इन्होंने अप्रैल के अंदर। तो आपके पास अप्रैल के अंदर जो पेमेंट्स हुई वो ये हैं, P1, P2, P3, P4 एंड देन P5। P5 आ गया आपके पास 49,000 इन अप्रैल में, और ये जो बाकी पेमेंट्स हैं मई एंड जून में, उसको छोड़ दें। अब देखें कि अप्रैल में आपके पास कैश इनफ्लो कितना आया। कैश इनफ्लो आया 170 प्लस 40 पहले से पड़ा था। सो कैश अवेलेबल, 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीव्ड या कैश कलेक्शन लिख देता हूं, ठीक है, कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन लिख लेता हूं। कैश कलेक्शन इज 170,000, कैश अवेलेबल इज 210,000, कैश पेमेंट्स, पेमेंट्स कितनी है? एक मिनट, 40, 15, 56, 70, 49। 230 सही कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। 230 सर। सही है, 230। सो कैश पेमेंट इज 230। ओके, डू यू हैव एन एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैश? शॉर्टेज? Yes sir। शॉर्टेज ऑफ हाउ मच? 20,000। 20,000. So whenever you have a shortage, what will you do? Loan? Okay. Bank loan. या borrowing. How much? 20,000, 60,000, नहीं 50,000, 50. सोच 50,000। 50,000. Yes. Why? Because 30,000 तो मेंटेन भी करना है ना सर, फिर उसमें 60% इंटरेस्ट भी देना है, वो भी नहीं। लेकिन क्या इंटरेस्ट इसी महीने दूंगा? नहीं दूसरे महीने देंगे। वो तो जब वापस करूंगा तब दूंगा ना, तो 50,000। ठीक है। सो नाउ आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ 20,000, 20,000 मेरे पास कम आ जाएंगे, 20,000 वो लेने हैं। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस चाहिए 30,000 हर महीने, तो 30,000 वो भी लेने हैं। इसका मतलब मुझे कितनी बोरो करने पड़ेंगे? 50,000। 50,000 बोरो करूंगा तो काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। 50,000 बोरोइंग हो गई। अब देखें मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 30,000। एंड दिस 30,000 विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग फॉर दी नेक्स्ट मंथ। अब सही है। इंटरेस्ट तो जब मेरे पास किसी महीने में एक्सेस कैश होगा ना, पे कर दूं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे कर दूंगा। अभी देखते हैं ना, देखते हैं। एक वक्त में एक बंदा 50,000 लोन क्यों लिया? जी ऐसा आप क्या करें ना, क्या उसने कहा? सेम मंथ, बोरोज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड रीपेज लोन्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब अगर इस महीने में मेरे पास पैसे ही नहीं है तो फिर क्या करूं? नहीं पे करूंगा। इस महीने देखता हूं पैसे आएंगे तो इस महीने पे कर दूंगा, नहीं आएंगे तो इधर देख लूंगा, नहीं आएंगे तो बस तीनों को नहीं पे होगा। लोन लिया ना तो हमें दूसरे मंथ में चुकाना होगा। देखते हैं ना कि कब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तब पेमेंट करूंगा। ओके, 50,000 का लोन क्यों लिया? 20,000 की मेरे पास शॉर्टेज है। मेरे पास जो टोटल पैसे आए हैं वो 210 हैं, 2,10,000, 210,000, और जो मेरी टोटल पेमेंट्स हैं वो 230,000 है। सो आई नीड 20,000। लेकिन फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 30,000। हर महीने पे आखिर में 30,000 पड़ा हो कैश में, 30,000। सो 20 + 30 आई नीड 50,000। क्लियर? सर मैं 60 क्यों नहीं दिया? इंटरेस्ट भी तो देना है। नहीं कुछ अच्छा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट देना है, क्यों लूँ ज़्यादा पैसे? काफिर लोग बहुत खराब। सर काफिर लोग बहुत ख़राब हैं। सर जी, सर ये जो हमने 30,000 एडिशनल लिया इसकी अकाउंट में नहीं ले सकते थे? 30,000 नहीं 20,000 एडिशन, सॉरी 30,000 क्लोजिंग बैलेंस है। 30 हमने इसलिए लिए बिकॉज़ जैसे कि क्लोजिंग 30 होना चाहिए, राइट? हाँ। लेकिन अगर हम 20 साल एक्स्ट्रा ले लेते लोन की तरफ तो वो भी तो ये 20 तो इन पेमेंट्स में चला जाएगा। मेरे पास पेमेंट्स करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पेमेंट करनी है 230,000 की, और मेरे पास कैश मैंने कलेक्ट किया 170 का, 40,000 पहले से पड़ा था, 210,000 पैसे पड़े हुए हैं। सही है? सो आई नीड एन एडिशनल 20,000 टू मेक द पेमेंट। तो 20 तो वो हो गया, और 30 और भी चाहिए ताकि इधर पड़ा हो, इमरजेंसी आ सकती है। ठीक, ओके, क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? सेकेंड मंथ स्टार्ट करें। ओपनिंग बैलेंस 30, कैश कलेक्शन किधर है? कैश कलेक्शन कैश का 4 लाख 350 4 लाख सर। अच्छा 4 लाख। ओके, कैश पेमेंट्स कैश पेमेंट्स 72,300। नेक्स्ट, नेक्स्ट 23,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट 95,000। हाँ 76, 96 माइनस 20 नॉन कैश। नेक्स्ट 95। 95, ना 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 85। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Purchases 143,700 of cash equivalent in May. 48,300. So now we have once again 5 payments. Okay. Collections कितनी है? 400. 400 की कैश कलेक्शंस हो गई। ठीक। 30 का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हो गया। कैश अवेलेबल कितना है? कैश अवेलेबल 430। यस सर। 4,30,000 रुपए मेरे पास हैं कि मैं पेमेंट्स कर सकूं। ठीक है सर। पेमेंट्स कितनी करनी है? 5। 72,300 यस सर। प्लस 23,000 प्लस 76,000 प्लस 85,000 प्लस 143,700। जी, हाउ मेनी पेमेंट्स डू आई नीड टू मेक? 4 लाख। 4 लाख पेमेंट्स करनी है। 4 लाख पेमेंट्स, 430 अवेलेबल है मेरे पास। डू आई हैव एक्सेस और शॉर्टेज? एक्सेस ऑफ हाउ मच? 30,000। Excess of 30,000. Can I pay back my loan? नो सर। नहीं। Why? 30,000 मेंटेन करना है। 30,000 तो मेंटेन करना है, तो लोन भी रीपे नहीं किया। ठीक, 30,000 goes to my closing balance. सर उस लोन के लिए अलग दूसरा लोन ले सकते हैं जो पाकिस्तान अभी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है कि आप क्वेश्चन में भी पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। नहीं रहे पाकिस्तान में रहे ना, तो ये बात ऐसी ना, हम इधर की है कि फर्स्ट डे में दे रहे हैं और लास्ट डे मंथ में दे रहे हैं। क्यों, आपने भी कोई वो रखे हुए हैं जो कि आपसे पैसे मांगते हैं हर महीने ताकि आपको उनको पैसे देने हैं? ये हम गलत नहीं कर रहे, ये इक्विपमेंट तो हमने मई और जून में लिया हुआ है। मैंने मई में इसको ऐड किया है। तो हम अप्रैल में क्यों? अप्रैल में मैंने सिर्फ डिविडेंड को ऐड किया था। डिविडेंड 49,000। 143 का डिविडेंड को नहीं ऐड किया। जी आपने वो इक्विपमेंट की परचेज को नहीं ऐड किया। नहीं, चेक कर लें, यू कैन चेक। सर तो ये जो लिखा है ना, हाँ। borrows on the first day of the month in हाँ। between of the last week। ठीक है। तो फिर फायदा क्या हुआ कि अगर मैं नहीं कर रहा है? अगर मैं नहीं कर रहा तो फायदा क्या हुआ? देखें, आप लोन कब लेते हैं? जब मुझे पैसे चाहिए। जब पैसे चाहिए। लोन वापस कब करते हैं? जब पैसे नहीं। जब पैसे मेरे पास ज्यादा हों। तो जब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं वापस क्यों करूं? नहीं तो इधर हमने क्यों लिखे फिर कि फर्स्ट डे में लूंगा और उसने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि लोन जब भी लिया जाता है पहली डेट पे लिया जाएगा, दरमियान में लोन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे महीने में कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और लोन जब भी वापस करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ पे वापस करेंगे ताकि आपको श्योर हो कि मेरे पास ये कैश एक्स्ट्रा पड़ा है, एक्सेस है। यहाँ पे एक्सेस तो है लेकिन इतना नहीं है कि लोन वापस कर सकूँ, इसलिए नहीं पे कर। क्लियर है? क्लियर सो फार? ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, जून में ओपनिंग क्या आ जाएगा? 30,000। जो आपके पास मई का क्लोजिंग है, सो मई का क्लोजिंग वुड बिकम जून्स ओपनिंग 30,000।
जून में कैश कलेक्शन कितनी है? 3,35,000. सो दैट मीन्स मेरे पास कैश अवेलेबल कितना होगा? 335 प्लस 30, 365,000. क्लियर? ओके. कैश पेमेंट्स जी, पेमेंट्स. अच्छा, पेमेंट नंबर 1 है सर आपके पास 72,700. 1. नेक्स्ट. 15,000. नेक्स्ट. 59,000. नेक्स्ट. 75,000. नेक्स्ट. बस इधर कुछ लिखा नहीं. 48,300. 48,300 in June. Yes. Add them up. Add all of these 5. किधर 72,700 प्लस plus 15,000 प्लस plus 59,000 प्लस 75,000 प्लस 48,300. ये 2,70,000. 2,70,000 मेरी कैश पेमेंट्स हैं. So do I have an excess Yes. or shortage? Excess Excess of how much? 95,000. Can I pay back my loan? बिल्कुल सर. Yes, I can pay back my loan. Loan is how much? 58,000. Loan is how much? Loan is 50,000. 50,000. But along with loan I need to pay 16%. interest. Interest कितना परसेंट है? 16%. Calculate. 8,000 sir. Calculate. ये एक महीने का 666 आता है. 50,000 आपने लोन लिया. Yes. इंटरेस्ट रेट कितना है? 16%. 16 by 100. Yes sir. अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे क्या फिगर देगा? 8,000. विच इज 8,000. Which is? For 1 year. फॉर 1 ईयर. Yes sir. आपने लोन कितने टाइम का लिए लिया? 2 महीनों का. 2 महीनों का. 2 months. लोन एक ये आ गया 1333. लोन कितने टाइम का लिया है? 2 महीने. 2 months. 2 months. पता नहीं. आपने कहा इधर लोन कितने महीने का लिया है? पता नहीं. 1 महीने का. जी वजिया. 3 मंथ्स. कैसे? अप्रैल में जून. अप्रैल मई और जून का लास्ट. क्यों अप्रैल मई जून? 31st of क्यों अप्रैल मई जून? क्योंकि हमने क्यों? अप्रैल 1 को लिया था. उसने कहा था 1st of April. यू नीड टू टेक लोन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. अप्रैल 1 को लिया. अप्रैल का पूरा महीना. सही. मई फुल मंथ. वापस कब करेंगे? जून लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो फिर जून का भी पूरा महीना. तो 3 महीने. सो दैट मीन्स 8,000 इज फॉर द होल ईयर. और 3 महीने का कितना होगा? 2,000. डिवाइड बाय 2000 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000. तो मैं जो कर रहा था वो भी तो सही था ना यार. मैं इस तरह कर रहा था. आपने क्वार्टर्स पर डिवाइड किया. ना ना ना, मैं कह रहा था कि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2. एक ही बात. ओके ओके. 2,000. तो अब आपने कितना लोन वापस करना है? 50 2000 प्लस 2000 2 इक्वल्स 52. सो नाउ योर क्लोजिंग बैलेंस विल बी 43,000. 95 minus 52, 43,000. 43,000 closing balance of cash on June. Thank you sir. Okay, what is the excess deficiency of cash available over disbursements for June? क्या मतलब सर? सर ये तो एक्सेस में आ रहा है. एफिशिएंसी कितना? तो कितना है? ये है 43,000. जून के महीने में एक्सेस था 95,000. कितना? 95. विच ऑप्शन? डी. सही. ओके ठीक. 2,000, 52, 43 डन. खत्म. थैंक यू सर. जो सारे आपने बजट पढ़े आपने सिर्फ एक उसमें बनाया है कि एक ही उसमें बनाना था कि सेपरेट सेपरेट? नहीं, सेपरेट सेपरेट आप बना सकते हैं. लेकिन मैं चूंकि चाह रहा था कि ये सब वो अब अलग का करना है, इसलिए हमें 3 क्लासेस मिल गई और मैं चाह रहा था कि सब एक साथ हो ताकि आप सबको अच्छी तरीके से समझ सकें. प्लस अगर ये होता कि मैं रोज़ आके 2-3 पढ़ाता तो मुझे फिर बनाना पड़ता और फिर करना पड़ता. तो आज एक ही क्लास में हमने ऊपर से नीचे सारा एक ही क्लास में कर दिया. ठीक है. सर ये 2000 किस तरह है सर? 2,000 किस तरह आ गया?
सर ये तो डिवाइड बाय 3 नहीं होगा 8000 बाय 3 देखते हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं ना, आवाज़ जाएगी बीच में। सर ये बंद कर दूं नहीं, इसका क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद। चलें ना, इतनी कौन सी कोई ना उधर कोई मॉडलिंग हो रही है। ओके, सो नाउ 8000 इज फॉर द होल ईयर, फाइन। तो सिंपल, साल में कितने महीने होते हैं? 12। सो 8000 डिवाइड बाय 12, तो पर मंथ कितना आ गया? 666.67, ठीक है, 6667 जो भी करते हैं। ओके, ये आ गया एक महीने का। आपने 3 महीने लोन लिया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। और सर ये लास्ट में जो 50000 प्लस 2000 इसको 50,000 लोन वापस ब्रैकेट में ले, ब्रैकेट में लिख दें। सो 95 माइनस 52 43। आप क्लियर है? सबको क्लियर है? डन। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बजटेड बैलेंस शीट, एंड वी हैव 45 मिनट्स लेफ्ट। नो सर वी हैव 45, so we can 45 minutes left. In case you want to present, how many presentations we are left with? इसको pause करें।